Chapter number 2, Types of Software. Softwares are the sets of instructions given to the computer to perform the specific task. Computer में without the help of software we can't use the hardwares. Hardwares का यूज़ सिर्फ सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से ही होता है. Just like we are having food to eat, but we can't eat it until our mind gives the instruction. हमारे पास खाना है, हमारे पास हर चीज़ है, बट हमारा काम तब तक नहीं होगा जब तक हमारा माइंड उसे इंस्ट्रक्शन नहीं देगा. It implies that we need instructions to perform any activity. Just like if we feel hungry, we eat. We get tired of walking, we will sit down. We will put our hand far away from the hot and etc. So, programs or instructions are very necessary to perform any activity on computer. So, what are the types of software we will study in this chapter. Software भी types के होते हैं. इनके दो types होते हैं. एक है system software और एक है application software. According to the working means according to the use, the softwares are classified into two types. First one, system software. Next one, application software. System software are basically designed for the specific functions related to the controlling of the computer system. Computer system की controlling के लिए अगर system softwares नहीं होंगे तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम प्रॉपरली वर्क ही नहीं कर पाएगा. वो अपने हार्डवेयर्स और यूज़र्स के बीच में कोई इंटरैक्शन, कोई लिंक नहीं बना पाएगा. मीन्स हमारे कंप्यूटर सिस्टम की वर्किंग नहीं हो पाएगी. इट कंट्रोल्स ऑल द ऑपरेशंस एंड इंटरनल वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. अब सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के बिना तो हम सिस्टम को चला ही नहीं सकते. बट some other softwares are also needed to perform specific tasks which can be done on the use of the person, or you can say it can be used according to the will of the person who is using it. Just like you want to play a specific game, तो आप उस गेम को डाउनलोड करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे. So application software are meant for the specific one. It do not controls the overall activity of the computer. The overall activity of the computer do not affected by the application software. So here we will start with the system software. The types of system software are basically categorized into three parts: operating system, language processor, and utility software. We will study them in detail. First one, the operating system. ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ नीडेड टू ऑपरेट अ कंप्यूटर. कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है यूज़. इट कंट्रोल्स ऑल द ओवरऑल एक्टिविटी एंड इट प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर दैट इनेबल देम टू वर्क टुगेदर. मीन्स यूज़र यानी कि हम यूज़ करने वाले और हमारे हार्डवेयर्स, इनके बीच में एक इंटरैक्शन क्रिएट करता है जिससे कि हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल कर सकें. यू कैन से दैट कि कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करता है पूरी तरीके से. इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे के पूरे कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करने की. तो यू कैन से दैट ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना तो हमारा कंप्यूटर चल ही नहीं सकता. सो व्हाट आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? पहला, डिवाइस मैनेजमेंट. एज यू कैन सी इट हियर, इट इज़ रिटन डिवाइस मैनेजमेंट. डिवाइस मैनेजमेंट मतलब कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करना. नेक्स्ट वन, मेमोरी मैनेजमेंट. मेमोरी मैनेजमेंट मतलब कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितनी भी मेमोरी हम फीड करते हैं, जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उस असाइन किए होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को हमने, वो उनकी मेमोरी कितनी यूज़ हो रही है, कितनी उसमें एक्स्ट्रा है, उन सबको मैनेज करना. और इट ऑल्सो फ्रीज द मेमोरी व्हेन इट इज़ नॉट इन यूज़. जब कोई चीज़ यूज़ में नहीं है तो उसको फ्री आउट करना, उन सब का मैनेजमेंट जो है वो मेमोरी मैनेजमेंट करता है. तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट है. नेक्स्ट वन इज़ रन सॉफ्टवेयर.
जो भी सॉफ्टवेयर या जो भी इंस्ट्रक्शंस, जो भी कमांड्स दिए जाते हैं उनको रन कराना, like Paint, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint. These are the some applications which are run through the operating system. मतलब कि उसकी ज़रूरत है ही है. तो you can say that कि without the system softwares or operating system we cannot run a computer system. Processor management means कि working of the processor means the CPU की working पूरी की पूरी operating system कंट्रोल करता है. फाइल्स को मैनेज करता है कि उसको कैसे कॉपी करना है, कैसे डिलीट करना है, कैसे स्टोर करना है, ऑर्गेनाइज तरीके से. इट विल बी डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट वन इज सिक्योरिटी मीन्स जस्ट लाइक इफ पासवर्ड यू हैव क्रिएटेड तो उसका मिसयूज़ ना हो एंड सिक्योरिटी कंप्यूटर सिस्टम को मिलती रहे, तो उसका भी जो मैनेजमेंट है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. अब ऑपरेटिंग सिस्टम के भी 2 टाइप्स होते हैं. वन इज सिंगल यूज़र, अदर इज मल्टी यूज़र, एंड वन मोर इज देयर, इट इज़ मल्टीटास्किंग. व्हाट आर द डिफरेंसेस इन बिटवीन देम? लेट अस लर्न बाय वन. सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो एक यूज़र को एक सिस्टम पे एक ही टाइम में ऑपरेट करवाने के लिए एनेबल करता है. मीन्स ओनली वन पर्सन कैन यूज़ इट ऑन वन कंप्यूटर सिस्टम एट द गिवन टाइम. अभी एक टाइम पर एक ही इंसान एक कंप्यूटर पे उसको यूज़ कर सकता है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम कितने लोगों को अलाउ कर रहा है? एक ही को अलाउ कर रहा है. और यहाँ पे सिस्टम भी लिंक नहीं है, एक ही सिस्टम पे एक ही इंसान काम कर सकता है. ये मोस्ट कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम घरों में, ऑफिस में इसी को यूज़ करते हैं. नेक्स्ट वन इज़ मल्टी यूज़र. यहाँ पे यूज़र ज़्यादा होंगे. सो वी कैन से दैट कि इट अलाउज द मल्टीपल यूज़र ऑन डिफरेंट कंप्यूटर टू एक्सेस अ सिस्टम एट द सेम टाइम. अब यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि बहुत सारे सिस्टम है और एक एक इंसान यूज़ कर रहा है, तो हाउ यू कैन से दैट इट इज़ मल्टी यूज़र. तो ये मल्टी यूज़र इसलिए हो गया क्योंकि सिस्टम्स यहाँ पे लिंक्ड हैं. सिस्टम क्या है? दे आर कनेक्टेड टू द नेटवर्क एंड मेनी पीपल आर यूजिंग इट. दे आर परफॉर्मिंग द स्पेसिफिक वर्क in the specific time, but systems are linked and many people are using it. That's why it is the multi-user. Many people are using it. Linux, Unix इनके एग्जाम्पल्स हैं. फिर आता है, अभी आप इसका एक एग्जाम्पल ऐसे कंप्यूटर लैब में भी समझ सकते हैं कि एक सिंगल प्रिंटर कई कंप्यूटर से अटैच होते हैं. तो यहाँ पे क्या है? मल्टीपल यूज़र आर यूजिंग द सिंगल प्रिंटर. नेक्स्ट वन इज़ मल्टीटास्किंग. मल्टीटास्किंग मीन्स जिसमें कि हम हमारा एक यूज़र मतलब एक यूज़ करने वाला इंसान मल्टीपल एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकता है एट अ गिवन टाइम. ये बहुत कॉमन एग्जांपल है. अब जैसे विंडोज़ इंस्टॉल करते हो तो एक विंडो जो है उसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं एंड यू कैन यूज़ द वेरियस एप्लीकेशंस एट अ गिवन टाइम. आप मिनिमाइज़ करते हो एक को और दूसरी एप्लीकेशन पे वर्क करने लगते हो. आप दूसरी वाली एप्लीकेशन का वर्क जो है वो दूसरे में ट्रांसफ़र करके उस पर भी वर्क कर सकते हो. तो वी डू नॉट लूज़ एनी इन्फॉर्मेशन ऑन एनी एप्लीकेशन, बट वी कैन यूज़ द बोथ और साइमल्टेनियसली मेनी एप्लीकेशंस एट अ गिवन टाइम. सो इट इज़ मल्टी टास्किंग. यू आर परफॉर्मिंग मेनी फंक्शंस एट अ गिवन टाइम. So it is the type of operating systems. So what we have learned today, we have learned the types of software, the difference between system and application software, and system software में भी हमने आज operating system को पढ़ा.